subject, and Sarika will use plural number, and like this, Ritu will use singular. So have, all will be within 2 days. It will be comprehended nicely. So, do you want to make sentence or should I give? Arey, Sir, you told me to remind you for reading what. yes, Yeah. I just got it, the point. You can do one thing. You can start practicing 4 sentences of present perfect. Meanwhile, I'm taking the picture of that particular comics, and I will be prepared. You know, you can start. We distribute the verbs. Okay. Sarika, your verb is spoil, बर्बाद करना. Bhabi, your verb is spoil, spoiled it, spoiled it. Sarika. Renu Bhabi, your verb is return, returned, returned. वापस आना. My verb is also come back, came back, come back. एक्सक्यूज मी स्पॉइल्ड नहीं होता, स्पॉइल्ड होता है या स्पॉइल्ड होता है? हाँ, spoiled. Spoiled it नहीं, spoiled. You can switch on your CC. Spoiled or spoiled? Spoiled. Spoiled. T is Yeah. also available. Google is not taking T, but the second form, third form spelling is spoiled. Hmm. Google is taking only spoiled. Google is not taking spoiled. Okay, go ahead. Spoiled na or spoiled. I will write it down later. Okay. Sarika, you Should I start? start? Huh. Okay, okay. Um, Young generation has spoiled their future by using drugs. यंग जनरेशन अपनी भविष्य को ड्रग्स यूज करके स्पॉइल कर चुकी है. हैज यंग जनरेशन स्पॉइल्ड देयर फ्यूचर बाय यूजिंग ड्रग्स. क्या यंग जनरेशन ड्रग्स अपने फ्यूचर को no, not really. Some of youngsters are very smart and they are aware. So only few youngsters has spoiled their future by using drugs. So should I complete the process? No need, na? Okay. So how has young generation spoiled their future by using drugs? यंग जनरेशन अपना फ्यूचर ड्रग्स अपना फ्यूचर ड्रग्स का यूज करके कैसे बदलती है? बिकॉज एज वी नो ड्रग्स आर drug addiction is very harmful to everyone, and if somebody takes once, so it is maybe he is habitual to uh, take it. That's why it is very harmful to health as well, mental health as well as physical health. Okay. Your voice is chopping sometimes. Now. Okay. Now. It's okay. Say something. Aparna, it's your go. Am I audible now? Yeah. Now audible. Okay. Clearly audible. Bhabi, Okay. it's your go. Yeah. Okay. My verb is return, वापस आना.
They have they have returned they have returned back from London the day before yesterday. Have they returned from London the day before yesterday? Yes, they have returned from London the day before yesterday. How come they have returned from London day before yesterday? वे कैसे एक दिन पहले आ गए हैं, लंदन से कैसे एक दिन पहले आ गए हैं. इसका भी आंसर करो. They have returned from London the day before yesterday because their grandma is not feeling well. वे इसलिए लंदन से आ गए क्योंकि उनकी दादी माँ को ठीक नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी. ठीक है. अपर्णा, now it's your go. Time of India has come back one day. इंडिया का टाइम आएगा एक दिन. When he will show the his golden era, जब वो अपना सुनहरा समय दिखाएगा. has Aparna, you are using future simple in Hindi. आएगा. हाँ. The time of India has come. One day. नहीं, हाँ. इंडिया का टाइम एक दिन आता है, ऐसा आ चुका है, ऐसा नहीं होगा. टाइम ऑफ इंडिया हैज नहीं आएगा, ले रही हूँ ना मैं. हाँ. आ गया. Recreate your sentences. Meanwhile, Renu will make. हाँ. नहीं, रितु इज रेस्ट. अच्छा, Renu has made. So, give her verb. Ritu, your verb is used. Used. We have to make sentences present perfect tense. Affirmative, negatives, or inverted. Okay. I have used my mobile all the day. मैंने अपना मोबाइल पूरे दिन उपयोग किया. Affirmative. I haven't used my mobile all the day. मैंने अपना मोबाइल पूरा दिन यूज नहीं किया. और when have I used my mobile all the day? मैंने अपना मोबाइल कब पूरे दिन यूज नहीं किया. Sorry, I Dee. haven't. When According to your English sentence, Hindi is wrong. हाँ, मैंने अपना मोबाइल पूरे दिन क्यों यूज नहीं किया. नहीं, कब यूज नहीं किया. मैंने You are making affirmative WH, but your answer is negative. नहीं, नेगेटिव कर रही ना. मैंने अपना मोबाइल कब यूज नहीं किया. Okay, please Why? repeat that one. When have you used your mobile? When haven't I used my अच्छा, mobile? haven't बोला all- आपने. Okay, sorry. वैन इसमें प्रैक्टिकल नहीं है बेटा रितु. मैंने कब अपना मोबाइल पूरे दिन यूज नहीं किया. ये व्यवहारिक नहीं है. बट सेंटेंस इज रॉन्ग. सेंटेंस इज करेक्ट. सेंटेंस गलत है ना बेटा. या तो इसमें तुम किस लिए लगाओ. मैंने और एक बात और सुन लो सभी लोग बच्चों. प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात प्रेजेंट कैसे दिखेगा. जब अंत में है आएगा तब प्रेजेंट दिखेगा. और जैसे ही आपने बोला किया तो किया तो पास्ट सिंपल हो जाएगा. पास्ट सिंपल हो जाएगा. किया है
किया है। हाँ, ये भी मैं बताना चाहूंगा, आज से शुरुआत की है, तुम लोग 2 या 3 दिन तक बनाओ। कुछ दिन तक इसकी सावधानी रखो, बाद में इट विल बी ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ दिन जब तक बना ही रहे हो तो अच्छे से बना लो। गया, खाया, पिया, देखो दिस इज पास्ट सिंपल, यू नो वेरी वेल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल? तो हा शब्द इज द डिफरेंस। जैसे हम पूछते हैं ना, ऋतु क्या आपने ये लिख लिया है, तो परफेक्ट हो गया। हाँ क्या आपने लिखा, तो वो इन हाँ, मतलब वो पास्ट सिंपल हो पास्ट गया। सिंपल हो गया। और खाली इससे नहीं पता चलेगा, ऋतु, अभी हमने थोड़ी देर तुम्हारे आने से पहले इन लोगों से चर्चा की कि ग्रामर के हिसाब से जब हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं तो आमतौर पे हम उसमें समय का जिक्र करते हैं। जैसे हम पूछते हैं ना, डिड आई गिव यू एनी इंटरेक्टिव सेंटेंस यस्टरडे, तो जैसे ही यस्टरडे बोलते हैं मतलब वो कल पास्ट आपने सिंपल लिखा हो था। गया। और अगर हमने कोई चीज दे दी है तो आपका उत्तर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव जस्ट टॉक्ड टू देम दिस थिंग कि इफ आई हैव गिवन यू एनीथिंग, कोई दे दी है, तो तुम बोलोगे यस सर यू हैव गिवन दिस सेंटेंस, क्योंकि आपको मिल गया है। मिलने का कार्य परफेक्ट हो गया है, पूर्ण हो गया है। परफेक्ट टेंस का हिंदी में नाम है पूर्ण वर्तमान पूर्ण काल, वर्ग। ऐसा ही कुछ नाम है। पूर्ण, जिसमें किसी कार्य के पूर्ण होने की जानकारी मिलती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट यानी हिंदी में अगर देखें ऋतु, तो प्रेजेंट यानी कहीं ना कहीं है आना चाहिए, और अगर अंत में ता है आ रहा है तो वो तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। मैं पढ़ा रहा हूँ आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कार्य टेंस। जारी है। तो प्रेजेंट के 4 टेंस हैं। अब 4 टेंस में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इतना इतना सा। ताहूं, ती है, ते हैं, प्रेजेंट सिंपल। रहा हूं, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। कर लिया है, लिख लिया है, समझ गया हूँ, आ गई है, लाइट चली गई है यानी प्रेजेंट अभी अभी परफेक्ट। कोई कार्य हुआ है। प्रेजेंट अभी परफेक्ट। अभी यानी वर्तमान में कोई कार्य पूर्ण हुआ है। जैसे हम घर में, एक्चुअली इसका मूल गलती क्यों हो रही है उसका भी मूल कारण समझ लो। हम लोग अपने दैनिक जीवन में सही व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं हिंदी। हम लोग खाली इतना बोलते हैं, बेटा खा लिया, चलो थाली रख दो वहां, बेटा आ गया स्कूल से, चलो मुंह हाथ धो दो। अब हम हिंदी में ही गलत बोलते हैं तो इंग्लिश में तो वो गलती होगी। हम लोग कभी पूरा नहीं बोलते, बेटा क्या तुमने खाना खा लिया है, इतना कोई नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता, इतना ही बोलते, खा लिया, समझ गए, इतना ही तो बोलते हैं अपन। इसके कारण हमसे प्रेजेंट परफेक्ट की इंग्लिश में गलती होती है। तो तुम सामने खोल के रख लो, देख लो, उसमें लिखा है कर लिया है, समझ गया हूँ, वो आ गई है, लाइट चली गई है, आखिरी में है आ रहा, तो 1-2 दिन तक है लगाने की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इट विल डू, है ना। अभी तुम लोग अभी जैसे अपर्णा से भी गलती हुई, अपर्णा के मन में फ्यूचर सिंपल चल रहा है हिंदी में, तो चलो अच्छा हुआ हमने इस बात की चर्चा कर ली। 2 दिन ज्यादा लगी तो 3 दिन प्रेजेंट परफेक्ट को परफेक्ट कर लो। चलो गो अहेड। माई टाइम हैज कम, मेरा समय आ गया है। टू फ्लाई इन द एयर, आकाश में उड़ने का समय आ गया है। माई टाइम हैज माई टाइम हैज माई टाइम कम, क्या मेरा समय आ गया है? यस, नो माई टाइम हैज नॉट कम, मेरा समय नहीं, माई टाइम हैज आ गया, हाँ आ गया है, क्या कह रहा है? What is he saying? और रुद्राक्ष, रुद्राक्ष is saying something. No, your brother is saying something.
Your brother was asking me something, Okay. so I told him. Um, mhm. With whom? Name. How my time has come. मेरा समय कैसे आ गया है. कुछ भी बना लिया पता नहीं. असली में कम मेरा टाइम आएगा वाला था सेंटेंस दिमाग में, तो फिर कम बस के इसी बज रही है. फॉर्म लगा रही हो ना? हैं? कम केम कम थर्ड फॉर्म लगा रही हो. थर्ड फॉर्म कम ही आएगा ना. आई हैव कम, वो रहता ही है. हैव लगाओ तो कम ही आता है. केम जब आई केम या जब सीधे सब्जेक्ट के बाद लगाओ तो भी केम आता है. वो आदत सी पड़ गई है पता नहीं कैसे. कुछ चीजें अननोइंगली अपने दिमाग में है जो वो अपने आप होती हैं, तो सीखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाता है वो. पर ये नहीं पता कि क्या हो रहा है. हो हाँ रहा है वही सब, क्या एक्चुअली हो रहा है वो नहीं पता. दैट वी आर लर्निंग हियर कि क्यों हो रहा है ऐसा. जो अपन ने सीखा वो कैसे हो गया, वो अपने आप कैसे सीखा अपन ने, बिना सीखे कैसे सीख लिया. ऑल आर डन सर. एक और राउंड. शुड वी टेक वन मोर राउंड? No, I'm just coming. He has utilized his time. उसने अपना समय सदुपयोग कर लिया है. He utilized his time. क्या उसने अपना समय का सदुपयोग कर लिया है? No, he has not utilized his time. नहीं, उसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया. Why he hasn't utilized his time? उसने अपने समय का सदुपयोग क्यों नहीं किया? Yes, I have done. Okay, so I have prepared the reading part. Uh, but as I share my screen, I will disappear and I will open WhatsApp, and you can, without hesitation, you can inform me that the picture is clear or not. And I will take only the help of Sarika or Renu. Now, I think I'm not visible. Now I am going to WhatsApp, and this I have sent these pictures in your group. This picture is vertical. Okay, now I'm in the gallery, and how can I do it horizontal? I don't know. One more time you have to rotate it. But rotation option is not coming here. There is, है ना? There is, you have taken once alone. One more time. ये rotate. One more time. Yes. Now is it visible horizontally? Yes, sir.
It is Yes, visible. sir. But only bold letters, sir. So, if you want, you can zoom. Should I zoom or you want to zoom according to you? Prisoner Sir, number triple I one. have zoomed my mobile, but But a little letters are not Not clearly visible. visible. not be. Okay. So you can zoom out. Let me zoom in. आप लोग सब अपना zoom out हो जाओ. हम zoom करके देख रहे हैं. Now, Now it is clear? something. Inspector, I have heard that you can Can pick out take out practical particles. particles Particles from particles eye from eye carefully. carefully. A A particle particle Has. has Yeah. fallen in my eye. A particle fallen has fallen in my eyes. fallen दोस्तों in my eye. यहाँ से हम शुरू करते हैं. सारिका, देखिए दोस्तों, अपन ऐसा करेंगे कि जहाँ फुल स्टॉप है वहां एक 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 लाइन आपको पढ़ना है फुल स्टॉप तक. भले ही उसमें 4 लाइन दिए हों, आपको फुल स्टॉप तक एक एक लाइन पढ़ना है ताकि चारों को बराबर मौका मिले, कोई बोर ना हो. तो हम शुरू कर रहे हैं. आई एम स्टार्टिंग विद सारिका. सारिका, प्लीज रीड द हेडिंग. Prisoner number 111. ट्रांसलेट. कैदी नंबर 111. Okay. Now this is Aparna's turn. Aparna, read only by the full stop. Aparna? Oh, I was mute. Sorry. Hmm. Inspector, I have heard that you can take out particle from my eye carefully. This is full stop. Okay. A question mark. Now, yes, question mark means it is one sentence is over here. Complete, finished. इंस्पेक्टर, मैंने सुना कि आप यू कैन टेक आउट पार्टिकल, आप पार्टिकल निकाल सकते हैं मेरी आंख से सावधानी पूर्वक. ओके, गुड. अब देखिए दोस्तों, पार्टिकल शब्द केमिस्ट्री का शब्द है. उसका अर्थ तुम में से जो केमिस्ट्री वाला हो बताए, व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर पार्टिकल? सर, कण. किसी चीज का हाँ, कण. कण. लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखना ऋतु, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें. हम अक्षरशः अनुवाद करेंगे तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसको भावार्थ में लेंगे, उसमें जहाँ जो फिट होगा वैसा लेंगे. लेकिन उसके पहले हम अपर्णा से बोलेंगे. अपर्णा, आई हैव हर्ड. पहले इतने सेंटेंस के चैप्टर का नाम बताओ तुम. आई हैव हर्ड. विच चैप्टर डज दिस सेंटेंस बिलोंग? This sentence belongs to present perfect. Very nice. What is the subject of this sentence? I is the subject in this sentence. And what is the helping verb? Have is the helping verb and the heard is the third form of the verb. Here. हाँ दोस्तों, देखो, हम आपको याद है हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि लिसन क्रिया का प्रयोग बहुत पर्टिकुलर है. हियर क्रिया का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, तो आप भी इसको अपनी आदत में लेकर आए. आई हैव हर्ड. अपर्णा, टेल मी द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, आई हैव हर्ड. इंस्पेक्टर, मैंने सुना है. Okay. Sarika, can you tell me what is that here? Sir, that is a conjunction here. Absolutely right. That एक conjunction है. Conjunction यानी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द. Renu, can you tell me, you can take out particle from I carefully. Which chapter does this sentence belong? Sir, this sentence belongs to can chapter. Very nice. Ritu, what is the subject in this sentence? You is the subject in this sentence. Very good. Aparna, what is the helping verb here? Can is the helping verb in this sentence. Correct. Sarika, what is take
Sorry, what is main verb here? Sir, take out is the main verb here. Very nice. This is phrasal verb, take out. Renu, what is particle here? Sir, particle is object here. ओके, रितु ने आंसर दे दिया। रेणु से पूछते व्हाट इज फ्रॉम हियर? From. Sir, from is conjunction. No. No, it is preposition. Preposition. Okay. Okay. Aparna, what is I here? I is a object. Yes, you are right. I is object. Sarika, what is carefully here? Sir, carefully is an adverb here. Absolutely correct. कैसे पहचाना सारिका ये एडवर्ब है? Sir, because of fully. हाँ, एल वाई लगा मतलब एडवर्ब होगा। दोस्तों, आप धीरे धीरे अपने आप सीखते जाएंगे कि कुछ एडवर्ब बिल्कुल लास्ट में लगते हैं। अब हम प्रैक्टिकल रीडिंग में आ गए तो चीजें थोड़ा सा भिन्न हो जाएंगी, और कुछ वर्ब के पहले लगते हैं, तो इसको स्वीकार करते चलिए। अब अपर्णा, इसका पूरे का मीनिंग एक बार फिर से बता दे। इंस्पेक्टर, मैंने सुना है आप आंखों से कण को बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। सावधानी पूर्वक। हाँ, अब यहाँ हम कण की जगह दोस्तों कचरा शब्द रख लें, जो कि हम बोलचाल में बोलते हैं, तो कैसा रहे? है ना? एक बार रख के पूरा हिंदी करके बताओ। यहाँ से शुरू करें। इंस्पेक्टर, आई हैव हर्ड दैट यू कैन टेक आउट पार्टिकल फ्रॉम आई केयरफुली। इंस्पेक्टर, मैंने सुना है कि आप आंखों से कचरा बहुत सावधानी से निकाल सकते हैं। वेरी गुड। अब ये एक ये कौन बताओ सारिका, हु इज सेइंग दिस डायलॉग? Sir, prisoner is saying this dialogue. Okay, Renu, what is the number of the prisoner? Sir. Sir, one, Okay. only one. No, Ritu, tell me. 111. Sir, 111 prisoners Yes. are. Yes, correct. Okay, thank you. Aparna, what is the meaning, Hindi meaning of prisoner? Hindi meaning of prisoner is कैदी। कैदी। सारिका, prisoner में से ER हटा के बताओ क्या बचा? Prison. And what is the meaning of prison? कैद। कैद या जेल। करेक्ट। अब अगली बारी सारिका तुम्हारी है। तुम्हारी अपर्णा की किस्मत में थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस आ गया था। नहीं, सारिका से तो हमने हेडिंग करवाई थी। अब रेनू की बारी है। रेनू, ये आप पार्टिकल से शुरू करके पूरा पढ़ो। A particle has fallen in my eye. Which chapter does this sentence belong, Ritu? Sir, that sentence belongs to present perfect tense. Very nice. Aparna, what is the subject in this sentence? A particle is a subject in this sentence. Very nice. Sarika, what is the helping verb here? Sir, has is the helping verb here. Very nice. Renu, what is the main verb here? Sir, there is no main verb. Okay. Yes. बिना मेन वर्ब के कभी Yes, कोई sir. सेंटेंस नहीं Fallen बनेगा। is the main verb here, sir. Okay. Now I'm asking the same question to Ritu. Ritu, what is the main verb here? Sir, fallen is the main verb here. अब रितु तुम यही सवाल अपर्णा से करो, सेम टू सेम। Aparna, what is main verb here? Fallen is a main verb here. Very good. Aparna, same question to Sarika. What is main verb here, Sarika? The fall is the main verb here. Good. Fall is the main verb here. And अब सारिका तुम पूछो रेनू से कि what is the second form of fall? जी।
Renu Bhabi, what is the second form of fall? The second form of fall is fallen. This is wrong answer. Renu, you can ask the same question to Ritu. I think, sir, fell. Fall, Yes, fell, now you are right. The yeah, second form of fall is fell. fell. F E double L. FELL. हाँ. Yeah. अब थर्ड फॉर्म पूछ लो रेनू से. Ritu, what is the third form of fall? Third form of fall is fallen. गुड. अब इनके बारे में रेनू तुम पूछो अपर्णा से इनके What बारे में. What is in this sentence, Aparna? Bhabhi, in is a preposition in this. अब अपर्णा तुम माय के बारे में पूछो सारिका से. Sarika, what is my in this sentence? The my is the possessive adjective in this sentence. करेक्ट. गुड. लास्ट शब्द और पूछ लो ऋतु से तुम सारिका. The what is I in this sentence? I is object here. ओके, वेरी नाइस. अब जिसने भी ये सेंटेंस पढ़ा था हिंदी कर दे. A particle has fallen in my eye. एक कुछ कचरा मेरी आंख में गिर गया है, चला गया वेरी नाइस. हाँ, अब हम यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही बोलेंगे कि मेरी आंख में कचरा चला गया है. ये सबसे प्रैक्टिकल व्यवहारिक सेंटेंस है. मेरी आंख में कचरा चला गया है. अब आज के बाद आपको कभी इसका ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा कि चला गया है के लिए कम आएगा या कुछ और आएगा. ये अपने आप में सेंटेंस बन गए. भविष्य में आप बोल सकते हो कि समथिंग हैज फॉलन इन माय आई. अब हम अगले पिक्चर पे पढ़ते हैं और ये बारी किसकी है? Whose go is this? Ritu's. ओके. ऋतु, प्रिंट बहुत अच्छा तो नहीं है. हम थोड़ी मदद कर देंगे अगर पढ़ नहीं पाओगी तो, लेकिन फुल स्टॉप तक ही पढ़ना. पढ़ो. सर फर्स्ट वर्ड क्या है? BAL, बाल. यस यस, BAL है. हाँ, बाल. It is easy, one can take it out with one corner of one's handkerchief. वेरी गुड. अब ऋतु के किस्मत में ये पूरा बड़ा सेंटेंस आ गया. 1 मिनट आप लोग पिक्चर को देख लें. अब मैं अगला सवाल अपर्णा से कर रहा हूँ. अपर्णा, हु इज सेइंग दिस सेंटेंस टू होम? Cop is saying this sentence to prisoner. वेरी नाइस. ये एक पुलिस वाला है जो कि उससे बोल रहा है. सीधा साधा बताया इस कहानी में. चलो अब रेनू पहले तो पूरा ट्रांसलेशन जो भी मन में आ रहा है कर दो. Ritu. रेनू की बारी नहीं, ऋतु ने पढ़ा था. हाँ ऋतु तुम कर दो, फिर अपना आगे बढ़ते हैं. सर वो कह रहा है कि ये बहुत इजी है. इट इज इजी, ये बहुत इजी है. वन कैन टेक इट, कोई भी से निकाल सकता है. वन कैन टेक इट आउट विथ वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से लेके ऑफ वंस हैंग, एक रुमाल लेकर एक कॉर्नर से इसको कोई भी निकाल सकता है. वेरी नाइस. ऋतु, टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिजनर? द प्रिजनर्स नेम इज बाल, आई थिंक. यू आर राइट. उसका नाम बाल रखा है. अजीब सा नाम है लेकिन ठीक है, बाल नाम है उसका. रेनू, नो, सारिका गो. सारिका, it is easy. Which chapter does this sentence belong? Sir, this sentence belongs to be present. Very good. अब उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन तुम रेनू से कर लो. जी. Renu Bhabi, what is it here? Good. It is subject here. Very nice. अगला सवाल ऋतु से. अपर्णा. हाँ अपर्णा से. What is here? Bhabhi is the main verb here. Good. Is main verb here. हाँ. Ritu, what is easy here? Easy is the first form of the verb here.
सॉरी। ये गलत जवाब है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट टाइम दीजिए ना मुझे। इट इज हाँ, इजी। इजी इज द एडवर्ब हियर। सॉरी। कोई बात नहीं। गुड। अब तुम यही सवाल आगे इजी। किसी और से पूछो, सही जवाब कहाँ मिलता सारिका, है। व्हाट इज इजी हियर? See, easy is an adjective here. एब्सोल्युटली करेक्ट। इजी इज एन एडजेक्टिव। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सारिका, अगले विच चैप्टर डज द नेक्स्ट सेंटेंस वन कैन टेक इट आउट विथ वन कॉर्नर ऑफ वंस हैंकरचिफ, विच चैप्टर डज दिस सेंटेंस बिलोंग? So this sentence belongs to Can chapter. अब अगला क्वेश्चन तुम क्रम से बढ़ाते जाओ। जी। Aparna di, what is the subject in this sentence? सारिका, one is the subject in this sentence. रुक जाना रेनू, अपर्णा, वेट वेट वेट। दोस्तों देखिए, मात्र भी हमने 4 लाइनें ही पढ़ी हैं और आपके ज्ञान चक्षु खुलना शुरू हो गए होंगे। हमने वन को सब्जेक्ट की तरह बहुत कम प्रयोग किया है ना। तुम लोग भी अब सेंटेंस बनाते समय वन का प्रयोग नहीं करती हो, करती हो क्या? नहीं नो। सर। तो कल से करो। याद करो, शुरुआत राम, सीता, मोहन, राधा, ये सब तो हमने रिमूव कर दिया था। फिर तुम लोग अच्छे सब्जेक्ट रखने लगे, एवरीबडी भी रखने लगे, समबडी भी रखने लगे, एनीबडी भी। लेकिन वन अभी तक तुम लोगों ने रखने की कोशिश नहीं की। तो आज के बाद क्रिएटिविटी में, सेंटेंस मेकिंग में वन को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करना थोड़ा सा अभ्यास कर लो। तो वन इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, एब्सोल्युटली राइट। आगे बढ़िए। रेनू भाभी, what is can here? Can is a verb, helping verb here. करेक्ट। Ritu, what is take here? Take is the first form of verb here. करेक्ट। Sarika, what is it here? See, it is a object here. It is an object here. एन ऑब्जेक्ट, गुड। जी। अपर्णा दी, सर टेक आउट तो फ्रेजल वर्ब है ना, तो अभी यस बेटा, बिल्कुल विद का सही पूछो। सही। हाँ हाँ हाँ, सही है। यस, टेक आउट में फ्रेजल वर्ब है। और वो चीज भी अब सब लोग देख लो, सामने स्क्रीन पे है। कौन सा नियम है फ्रेजल वर्ब के साथ, कौन बताएगा हमें? सर फ्रेजल वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट बीच में आता है, जैसे टेक इट आउट। यस, टेक आउट फ्रेजल वर्ब है, ऑब्जेक्ट अपने आप बीच में आ गया, इट। आगे बढ़ो, गो अहेड। जी। अपर्णा दी, व्हाट इज विथ हियर? With is a preposition here. करेक्ट। रेनू भाभी, what is one here? वन कॉर्नर बोलना पड़ेगा अपर्णा। One corner here. One corner is an object here. Correct. This is an object here. Ritu, what is off here? Oh, one corner of one's handkerchief. Say, sir, of is preposition here. Absolutely correct. Of is a preposition here. Sarika, what is once here? Very nice question. Correct. Once is a possessive adjective here. Very nice answer. Correct. Aparna di, what is handkerchief here? Handkerchief is a object. An object. हाँ, handkerchief is an object here. वेरी नाइस। दोस्तों, कभी हमने ध्यान से इसकी स्पेलिंग नहीं देखी, आज पहली बार देख रहे हैं। क्या क्या साइलेंट है आप देख लीजिए। अधिकतर Be में silent. हैंकी यूज करते हैं, सबसे शॉर्ट फॉर्म महिलाएं हैंकी यूज करती हैं।
यह उसका पूरा नाम है और कैसे बना है इसको देख लीजिए। HAND हैंड, KER कर, CHIEF चिफ। लेकिन बोलते समय D साइलेंट होता है और R भी थोड़ी मात्रा में साइलेंट होता है। हैंकरचिफ, हैंकरचिफ, शॉर्ट में हैंकी। दोस्तों मैं चाहूंगा इस सेंटेंस को क्रम से सब लोग एक एक करके पूरा पढ़ें, 1 से लेके, और फिर हिंदी भी जो आए, गलत सलत जो जैसा भी, स्टार्ट अगेन। Bal, it is easy. One can take it out with one corner or of one's handkerchief. बाल ये बहुत इजी है, कोई भी रुमाल के एक कॉर्नर से इसे निकाल सकता है। वेरी नाइस। Bal, it is easy. One can take it out with one corner of one's handkerchief. बाल ये बहुत इजी है, कोई भी अपने रुमाल के कॉर्नर से इजीली हाँ, कोई भी अपने रुमाल के कॉर्नर से निकाल सकता है। इसको, वो इट बीच में है ना, इसको निकाल सकता है। Bal, it is easy. One can take it out with one corner of one's handkerchief. बाल ये बहुत ही आसान है, हर कोई इसको रेनू कोई भी अच्छा, कोई भी इसको निकाल सकता है। हर कोई नहीं, कोई भी उसको हैंकरचीफ के कॉर्नर से निकाल सकता है। गुड। Bal, it is easy. One can take it out with one corner of one's handkerchief. बाल ये बहुत इजी है, कोई भी रुमाल के एक कॉर्नर से इसको आसानी से निकाल सकता है। अब एक बहुत खूबसूरत बात हुई लेडीज कि इट इज इजी में सबने हिंदी में लगाया, ये तो बहुत आसान है। तो बिल्कुल सही, हम बोलते हैं ये तो बहुत आसान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वेरी शब्द घुसे इंग्लिश में, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। इट्स इजी, इतना बोलना भी पर्याप्त है, लेकिन हमारी जबान पे आ गया इट्स वेरी इजी, ये तो बहुत आसान है। तो इन चीजों को भी हम देखते चलें कि जो हम ट्रांसलेशन करते हैं उसमें कितना फर्क पड़ता है। नाउ हुज गो इज दिस? सर इट्स माय गो। ओके, अब ये इससे ज्यादा जूम हो नहीं रहा है। जी जी जी। गिव मी द की। करेक्ट। हु इज सेइंग टू हुम, सारिका? सर बाल इज सेइंग टू कॉप। एंड हु इज क्राइंग? सर कॉप इज क्राइंग। Okay. Which chapter does this sentence belong, Sarika? Sir, this sentence belongs to order or request. Okay. Can you translate now? जी, मुझे की दे दो। हाँ, अपर्णा तुम्हारे सॉरी रेनू तुम्हारे हिसाब से इसका हिंदी क्या होगा? मुझे वह की दो, मुझे वह चाबी दो। हाँ, ऋतु तुम्हारे हिसाब से? गिव मी द की, तो यहाँ की को एज अ टूल बोला जा रहा है सर। गिव मी एज अ टूल मतलब आंख से कचरा निकालने के लिए वो रुमाल मांग रहा है, पर की बोल रहे हैं आप। हाँ, अब अपर्णा बता दो। थैंक यू। नहीं गड़बड़ की दे, उसने बोला सिर्फ चाबी दे। हाँ, अब तुम काफी क्लोज आ गए। यहाँ ये भाव ऐसा होगा, दे चाबी, देख, है ना? वो उसने गलत, हाँ, हाथ से पूरा जकड़ लिया और उसमें घुस। अब वो अपने रियल उस फॉर्म में आ गया है और क्रोध में बोला दे चाबी, मतलब वो जो जिसमें वो बंद है उसकी चाबी दे। हाँ, उसने बहाने से उसको बुला लिया पास में।
ऊपर वाले चित्र में देखो, वो उसके आंख से कचरा निकालने की कोशिश कर रहा है रुमाल के एक कोने से, और उसको मौका मिला, उसने गला पकड़ लिया और बोला दे चाबी दे। तो जबलपुरिया भाषा में रितु ऐसे ही बोलेंगे ना, दे चाबी। और एक आध भद्दी सी गाली साले वाले लगा सकते हैं अपन यहाँ पे। दे चाबी साले, तो और मजा आएगा। तो अपन नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ पे अब हमें दूसरे चित्र की ओर जाना होगा। ये दूसरा है और इसको करते हैं अपन रोटेट। एक बार फिर से रोटेट करते हैं। वंस अगेन रोटेटेड। हाँ, नाउ इट्स ओके। Whose go is this? It's my go. ये जो नो लिखा है वहां से पढ़ना है पढ़ना तुम्हें। Okay, sir. No prison can keep bar locked up for a long time. कोई Correct. भी जेल मुझे लंबे समय तक लॉक करके नहीं रख सकती है। किसी को किसी फिल्म का डायलॉग याद आया? हाँ, कालिया का। यस, कालिया कालिया कोई का भी डायलॉग। जेल लंबे समय तक बंद करके नहीं रख सकती। अमिताभ बच्चन प्राण से बोलता है कि दुनिया की कोई जेल कालिया को ज्यादा दिन तक रोक के नहीं रख सकती, जेलर साहब। ओके, चलो हम इसके डिटेल पूछते हैं। सारी का नहीं, इस बार हम ऋतु से पूछते हैं। ऋतु, विच चैप्टर डज दिस सेंटेंस बिलोंग? Sir, that sentence belongs to Ken chapter. वेरी नाइस, वेरी गुड। अब अगला डिटेल तुम रेनू से पूछो। Renu, what is no here? नहीं बेटा, ऐसा मत पूछो, ये पूछो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। Okay. Renu, what is the subject in this sentence? Ritu, no prison is a subject here. एब्सोल्युटली करेक्ट। Sarika, what is can here? Bhabhi, can is a helping verb here. What is the main verb here? Keep is a main verb here. What is bal here? Ritu? Bal is addressing word here. नहीं बेटा, ये गलत जवाब है, थोड़ा और सोचो फिर बताओ। Introductory word? नहीं. नहीं, No prison can keep bal. पिछले वाले चित्र में बाल संबोधन था, लेकिन इसमें ध्यान से देख के बताओ क्या है। Bal is the second subject here. नहीं बेटा, सब्जेक्ट तो बता दिया ना अभी, रेनू ने बताया, बिल्कुल सही बताया। नो प्रिजन इज द सब्जेक्ट, और वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, व्यक्ति नहीं बल्कि वस्तु सब्जेक्ट है यहाँ। सर, बाल उसका नाम था तो वो। हाँ, नाम तो है, लेकिन इस वाक्य में वो किस रूप में काम कर रहा है? नो प्रिजन कैन कीप बाल लॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। नो प्रिजन कैन कीप, ये एक अलग बात है। बाल लॉक्ड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई बात नहीं, देखो अपन आगे देखते हैं आंसर। सारिका, व्हाट इज बाल हियर? वेरी नाइस, The ball is an object here. एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे है ऋतु, जी। चलो तो समझा देते हैं। एक मिनट रुकना सारिका। ओके ओके। देखो ऋतु, इस वाक्य में नो प्रिजन जो है वो सब्जेक्ट है, यानी कर, जो कि काम कर रही है। और वो कौन सा काम कर रही है? रखने का। और किसको रख रही है? क्रिया का जिस पे असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो किसको रखने का काम कर रही है इस सेंटेंस में? बाल को रखने का काम कर रही है जेल। तो क्रिया का जिस पे असर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। अब अगला सवाल मैं पूछता हूं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है।
Renu, what is locked up here? Sir, locked up is again a second subject. No, Renu, this is wrong answer. Ask the same question to Aparna. Aparna, what is locked up here? Locked up is a मतलब keep locked up is a phrasal verb. अच्छा प्रयास अपर्णा, सारिका से पूछो. What is locked up here, Sarika? The locked up is an adjective here. एब्सोल्युटली करेक्ट. दोस्तों, कभी हमने आपको ये बोला था कि क्रिया का तीसरा रूप प्रायः विशेषण एडजेक्टिव के रूप में काम करता है. जी जी. तो यहाँ विशेषण के रूप में लॉक्ड अप, पूरा शब्द लॉक्ड अप विशेषण है कि कैसे, बंद करके. तो उत्तर मिल रहा है बंद करके. तो ये उसकी विशेषता हो गई कि कोई भी जेल क्या नहीं कर सकती, रख नहीं सकती. कैसे नहीं रख सकती? बंद करके नहीं रख सकती. किसको नहीं रख सकती? बाल को नहीं रख सकती. तो यहाँ विशेषता बताई जा रही, कैसे नहीं रख सकती है किस बाल को कोई भी जेल. तो उत्तर मिल रहा है बंद करके नहीं रख सकती, लॉक करके नहीं रख सकती. तो वो विशेषता बता रहा है. अगला सवाल सारिका पूछेगी. जी. Aparna di, what is for here? For is an preposition here. Absolutely correct. What is a long time here, Bhabhi? A long time is the extension here. Absolutely correct. Now, whose go is this? Sir, mine, I think. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा चित्र, क्योंकि क्लियर नहीं है, समझा देता हूँ. आप देख रहे हैं चित्र में कि उसने पुलिस वाले को बेहोश कर दिया है और उसकी चाबी छीन के उसने खोल लिया है ताला, बाहर आ गया और पुलिस वाले की बंदूक उसके हाथ में है. अब वो बाएं तरफ के चित्र में रेट 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 लिखा है. तो हमने अगर बचपन में कॉमिक्स पढ़ी होगी तो हिंदी कॉमिक्स में तड़ 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 या धाए 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 लिखा हुआ मिलता था. तो इंग्लिश में रेट 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 लिखा हुआ है. वो गोली चला रहा है. अब अगला फुल स्टॉप तक पढ़ना है, जिसकी भी बारी है. Prisoner number 111 has run away. बिल्कुल, यहाँ फुल स्टॉप है. अब यहाँ पे चित्र काला है तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ. एक दूसरा पुलिस वाला आता है और जेल के बड़े अधिकारी आता है. और रेनू, देखना अगर वो पढ़ पा रही हो तो वो एक बटन को दबा रहा है. उसके ऊपर क्या लिखा है? Emergency Emergency siren. वेरी siren. गुड. अब कई बार कुछ चीजें दिखती नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड और कॉमन सेंस वाली हो जाती हैं. वो एक बटन दबा रहा है, एक सायरन दबा रहा है जिसके ऊपर लिखा है इमरजेंसी सायरन. और सेंटेंस अभी रेनू ने पढ़ा, प्रिजनर नंबर 111 हैज रन अवे. Sir, तो alarm and sirens both are same. कम अगेन. Siren or alarm are No, both are not same. both are same. बताओ रितु, क्या अंतर है बेटा? सर सायरन जो है कंटिन्यूअस बजता है और अलार्म थोड़े समय के लिए बजता है. और कोई बताना चाहे? Because I have seen emergency alarm as well. That's why I'm asking. Siren is for public awareness, Yes. and alarm is for individually you can set the alarm for yourself. And siren, it is to alert the public, whole public, the people, matlab, whoever is in their premises or Very in that nice. society. Good. Sarika is asked to explain. जी. Sir, I think siren beeps continuously, and alarm we can use personally, as Renu Bhabhi said, na, or Ritu Didi said. So
It is slightly different, both of them, but I think Yes, you are right. We will Google it. But as far as I think, uh, siren जो किसी ऐसी दुर्घटना वगैरह के लिए प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग बचपन में एक सायरन सुनते थे, किसी फैक्ट्री का बजता था कि फैक्ट्री का समय हो गया है, तो वो काफी देर तक बजता था, फिर अपने आप बंद होता था। तो चलिए हम इस पे और भी चर्चा करेंगे। आप सबने बिल्कुल सही बोला है। अब अपन गूगल को ही फाइनल मान के बाद में इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 111 हैज रन अवे का हिंदी बताइए रेनू। कैदी नंबर 101 भाग गया है। वेरी नाइस। देखो भाग गया है। अब अपने आप आपके मुंह से सही हिंदी प्रेजेंट परफेक्ट का निकलने लगा है। आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन। इसके डिटेल पूछ लेते हैं। रेनू अगला डिटेल जिसकी भी बारी है उससे पूछ लो। विच चैप्टर? Which chapter does this sentence belong? Ritu? That sentence belong present perfect tense. बेटा टू लगा दो, एक बार फिर से बोल दो। That sentence belongs to present perfect tense. गुड। Sarika, what is prisoner here? ये थोड़ा इनकम्प्लीट पूछा बेटा तुमने, देखो ध्यान से। या What is सीधे the ऐसे what is नहीं, the prisoner here? ऐसे पूछ लो व्हाट इज द What is सब्जेक्ट। the subject here? Sorry. the prisoner number 1 is a subject here. Aparna करेक्ट। di, uh, what is helping verb here? Has is a helping verb here. करेक्ट। Renu Bhabi, what is run away? Run away is a object here. Sorry. नहीं, has run away is a main verb here. Sorry. Okay. क्या आएगा? Okay. Third form of the verb. करेक्ट। Run away is a third form of the verb. एब्सोल्युटली करेक्ट। अब who has to read the next sentence? Sir, Sir, it's I my have go. to read. Ritu. Okay, I must blow the emergency siren. correct. मुझे इमरजेंसी सायरन बजा देना चाहिए। बिल्कुल सही। Sarika, what is the subject here? The I is the subject here. करेक्ट। Aparna di, what is must here? Must is a helping verb here. एब्सोल्युटली करेक्ट। What is blow here? Renu Bhabi. Blow is a main verb here. एब्सोल्युटली करेक्ट। I must blow. Ritu, what is the here? The is the article here. गुड, नाइस। Sarika, what is emergency here? इमरजेंसी सायरन एक शब्द है। Emergency siren here. The emergency is an object here. गुड। ओके, हिंदी इज डन। Blow, sir, blow means बजाना तो क्रिया होगी bajana. ना। And he हाँ, is pulling the pushing the, I think, what is he doing? हाँ वो वही कर रहा है। और अगर आपके मन में थोड़ी सी शंका आई है तो चलो फिजिक्स की दृष्टि से देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग जो भी Sir, like flew, na? The Fluid horn. flow. ब्लो Blow ब्लू the ब्लो horn नहीं, हाँ, means blow the horn.
ट्रक के पीछे बरसों से हम बजाना। लिखा देखते आ रहे हैं ना, ट्रक्स के हम्म। पीछे ब्लो द हॉर्न। तो चलो थोड़ा सा फिजिक्स की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जितने भी हॉर्न होते हैं वो हमेशा हवा के दबाव पर काम करते हैं। पुराने समय में दूध वाले को याद कर लो जो साइकिल पे आता था। भोंपू बजाता था। हाँ, वो दबा दबा के बजाता था ना। भोंपू। हाँ, भोंपू हाँ, बजाता। वो है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूटर में या गाड़ी में लगा हुआ हॉर्न, उसमें हवा कहाँ भरी रहती है। तो दोस्तों उसमें सिद्धांत तो वही है फिजिक्स का, अंदर एयर क्रिएट होती है। और अगर जबलपुर में, वहाँ नागपुर का और बॉम्बे का तो नहीं मालूम, लेकिन जबलपुर में कुछ गाड़ियों में वो बहुत बड़े बड़े हॉर्न लगे हुए हमने देखे हैं। वो लोग लगवाते हैं कुछ मनचले बच्चे या कुछ ऐसे आताताई लोग। तो उसमें यस पीछे सर। वो भोंपू जैसा दिखता भी है। देखा है तुमने? यस सर। इट सीम्स हाँ वेरी वियर्ड एंड सो हाँ। नॉइजी। या तो अब वो सिद्धांत वही है दोस्तों। कोई भी हॉर्न हो, उसके अंदर वो एयर प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वो आवाज निकलती है। इसलिए इसमें ब्लो क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ब्लो द हॉर्न। चलिए आगे बढ़े। शुड वी गो अहेड? यस Yes. प्लीज। यस। अलार्म बज रहा है, मूव करते। यस। हु हैज टू रीड दिस? सर आई हैव टू रीड दिस। गो अहेड। हाँ। ये तो मोटरसाइकिल चल रही है ऐसा लग रहा है। ऋतु याद करो, अपने यहाँ वो फैक्ट्री में नहीं होता था करके शाम बहुत ये को सब बजता था बजता। ठीक 5 बजे। हाँ हाँ। Okay. Siren. Prisoner was escaped. हम्म Escaped. हम्म। हाँ। कंप्लीट द प्रोसेस। जी। तो वो ऐसे आश्चर्य से पूछते हैं, सायरन कैदी भाग गया? वेरी नाइस। दोस्तों हम इस सेंटेंस के चैप्टर्स के बारे में आपसे चर्चा नहीं करेंगे, बता देते हैं। दिस इज पैसिव वॉइस। वॉज लगा है ना। हाँ बेटा, अपन आगे इस चैप्टर के बहुत निकट पहुंच गए हैं। मुश्किल से एक आध हफ्ते बाद अपन पैसिव वॉइस में प्रवेश करेंगे। तो हिंदी बिल्कुल सही हो गया, हम डिटेल नहीं पूछेंगे। तो वो इंस्पेक्टर जो है, बड़ा अधिकारी, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। बोलता, अरे सायरन, लगता है कोई कैदी भाग कैदी गया भाग गया। है। चलिए। अरे यार एक सेकंड, एक गलती हमसे हो गई है, सॉरी। नहीं सर, ये तो प्रेजेंट यस प्रेजेंट परफेक्ट है। यस यस Prisoner यस। has हाँ हैज, बिल्कुल। हाँ। हम हैज। भी उसको है गौर तो से मुझे वॉज देखेंगे। दिख रहा है, यस, वॉज नहीं दिख नहीं, रहा था। हाँ हैज। बिल्कुल सही है वो। प्रिजनर हैज हाँ, एस्केप्ड। हैज है। भाग गया है। तो चलो अब डिटेल कर लेते हैं, थोड़ा सा पूछ लो बेटा एक एक करके। escaped. जी। अपर्णा दी, which chapter does this sentence belong? Sarika, this sentence belongs to present perfect. Renu Bhabhi, what is subject here? Prisoner is the subject here. What is has here? Has is the helping verb here. Sarika, what is escaped? The escape is the third form of the main verb, escape. करेक्ट, गुड। Escaped. प्रिजनर हैज एस्केप्ड, कैदी Siren. भाग गया है। सायरन क्या होगा सर, ऑब्जेक्ट? नहीं बेटा, सायरन यहाँ पे केवल एक विस्मयादि बोधक शब्द है। अचानक उसको जैसे ही आवाज आती है तो वो बड़ा अधिकारी चौंक के बोलता, अरे सायरन, लगता है कैदी भाग गया है। ये भाव है वहाँ। सायरन यहाँ कुछ भी नहीं है, ये दो Word. सेंटेंस है।
और हम हर जगह विस्मयादिबोधक शब्द जो लगवाते हैं, ये संकेत, वो एक्चुअली ये बहुत सारी कॉमिक्स बचपन में पढ़ी, उसी के कारण हम लगवाते हैं कि जब किसी डायलॉग में आपको क्योंकि अब राइटिंग में आप कैसे तीव्रता प्रकट करेंगे, जैसे वो में आप देखो तो उन्होंने वो कितने सारे लगा दिए हैं, है ना, और फिर एक विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पे भी है। तो राइटिंग में एक्सप्रेशन को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम भी इंटरेक्टिव सेंटेंस में लगाते हैं। चलिए, हु हैज टू रीड द नेक्स्ट वन? It's my go. Bal must not have gone very far. Come. बाल को ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, चलो। ये गलत हो गया है, बाल ये must चैप्टर not हमने have दिया gone नहीं है, ज्यादा दूर। पैटर्न में देंगे, लेकिन आप में से कोई जो भी एक एक करके सब लोग कर लो इसका हिंदी। बाल मस्ट नॉट हैव गॉन वेरी फार। कम, बाल बहुत दूर नहीं गया होगा, आओ। बिल्कुल सही, यही भाव है इसका। बाल ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चलो, इस सेंस में है। अब यहाँ बेटा आओ नहीं होगा, इंस्पेक्टर बोला चलो, चलो। है ना, और थोड़ा आगे जाके बोलेगा आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। तो ये चैप्टर भी हम जल्दी ही इससे परिचित होने वाले हैं, लेकिन हिंदी आपने बिल्कुल सही निकाला। बाल मस्ट नॉट हैव गॉन वेरी फार। दोस्तों, आज हमने यही 2 पिक्चर की फोटो ली थी और आज समय भी हो गया करीबन। कल आप लोग छुट्टी रख रहे हो क्या? Yes sir. Yes sir, I have to go somewhere. चलिए, तो फिर कब मुलाकात करें? मंडे, ठीक है। सी यू ऑन मंडे। Okay sir, happy sir. Dussehra. Happy Dussehra in Happy Dussehra. advance, everybody. Thank Happy you. weekend. Much. Bye bye. Thank you, sir. Bye. Thank you sir.